Okay, good morning students. So in previous video class what we have learned, chapter number 1 is finished. So what is your chapter number 1? That is integers. Now we are moving on to the chapter number 2, that is fractions and decimals. What is the chapter name? Fractions and decimals. So first of all we will talk about the fractions. We will complete the topic of fraction, then after we will move to the decimals. So first I will go with the fractions. So what is the fraction? Types of fraction. So in this year, in chapter number 2, what you will do? So you will do the addition of fractions, subtraction of fractions, multiplication of fractions and division of fractions. ये सब आप करोगे. So before that you know some basic concepts that is related to fractions and types of fractions. Clear? तो ये आपको टेक्स्ट बुक में डेफिनेशंस हैं, तो खाली आपको एक्सरसाइज का पीडीएफ फाइल्स आएंगे सॉल्यूशन के. Then what you have to do? You have to search these definitions and you have to write in your failures. Okay. So first we will go with the what is a fraction. ठीक है. So fraction is a part of whole. Whole means a complete. In complete one, from the complete one you are taking some small piece or some small part. That part can be called as a fraction. है ना. अगर आप एक पूरे में से whole में से थोड़ा सा पीस अपार्ट ले रहे हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन बोलेंगे. ठीक है. सपोज फॉर एग्जांपल ये सर्किल है, इसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो वन जो पार्ट ले रहा हूँ तो ये पूरे में से कितने पार्ट बने हैं? 4 पार्ट बने हैं. तो पूरे में से मैंने कितने लिए हैं? 1 लिए हैं. तो ये होल में से मैंने 1 लिया है, इसको हम क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन बोलेंगे. क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन. So now you know about the definition of fraction. Fraction is a part of whole. Now I am moving towards the types of fractions. What? Types of fractions. So what is the types of fractions? So first like fractions. What is the like fractions? In fractions denominators are same, that fractions are called as like fractions. In fractions all the denominators are same, then the fractions are called as like fractions. यानी fractions के denominator में सारे denominator same रहेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? like fractions बोलेंगे. क्या बोलेंगे? like fractions बोलेंगे. क्लियर? तो like fractions के एग्जांपल्स आपको कैसे रहेंगे? मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ. फॉर एग्जांपल like fractions आपको 2/5, 3/5 और 6/5, 7/5 ये सारे. So in this denominators are same. So these fractions are called as like fractions. What are these fractions are called as? Like fractions. Then we will move to the unlike fractions. So in fractions denominators are not same. In fractions denominators are not same, then the fractions are called as unlike fractions. So for example, if we see example unlike fractions, that is 3/7, 4/3, 2/5, etc. and etc. In no one fraction have the same denominator. Therefore these fractions are called as unlike fractions. Then what is a proper fraction? What is a proper fraction? Next, proper fraction. So a proper fraction means the numerator is less than the denominator. In fraction, numerator is less than the denominator, then the fractions are called as proper fraction. For example, C 7/3. This is a proper fraction or improper fraction? This is a proper fraction. Clear? Numerator is less than the denominator, then the fractions are called as proper fraction. Clear? जैसे कि मैंने 7 पार्ट्स बनाए, 7 पार्ट्स में से मैंने 3 लिए हैं, तो वो क्या हो गया? मेरा प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ. मगर जब मैंने 7 पार्ट्स बनाए और मैंने 10 लिए हैं, तो मैंने पार्ट्स ही 7 बनाए, तो मैंने 7 पार्ट्स में से मैं 10 पार्ट्स कैसे ले सकता हूँ? सो उसको हम प्रॉपर नहीं बोलेंगे. दैट मीन्स न्यू definition, complete definition क्या हो गया? In fraction the numerator is less than the denominator, then the type of fractions are called as proper fraction. Example for proper fraction, if we see numerators are less than the denominators, so what we can write the example for the proper fraction? For example 3/7, 2/5, etc. and etc. Clear? So these are proper fraction. Then what is the improper fraction? Improper fraction means the numerator is greater than the denominator. So what? In fractions the numerator is greater than the denominator, then the type of fractions are called as improper fraction. For example 7/5, here numerator is bigger than the denominator, then this type of fraction is called as what? Improper fraction. What is this? Improper fraction.
So if you write the example for the improper fraction, for example 11 by 5, 7 by 2 and 5 by 3, etc. and etc. These are called as what? Improper fraction. What are these called? Improper fraction. Next, mixed fraction. What is this mixed fraction? So mixed fraction consists of one whole part, one whole number and one proper fraction. What is the mixed fraction? Contains one whole number and proper fraction. Clear? So तो तभी मिक्सड फ्रैक्शन आएगा. तो मिक्सड फ्रैक्शन कब बनेगा? When improper fraction can be converted into मिक्सड फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर को ही हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? मिक्सड में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो इसके लिए किसको हम मिक्सड में कन्वर्ट कर सकते हैं? improper fractions can be converted into mixed fractions. Clear? And mixed fraction contains क्या क्या रहेगा? One whole number plus proper fraction रहेगा. Mixed fraction contains one whole number plus proper fraction. कैसे? Suppose for example अब हम यही लेते हैं 7 by 2 है, मैं 7 by 5 ले रहा हूँ. ठीक है, अब इसको मिक्सड में करना है तो डिवाइड करो. 7 5 बन जा 5, 2 रिमेनिंग. क्लियर? रिमाइंडर में 2 बचा. तो इसको लिखेंगे कैसे? हम कैसे लिखेंगे इसको? इस तरह से जाना है आपको. ठीक है, पहले 5 है तो 5 पे आएगा यहाँ पे, तो 1 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे. 2 कहाँ आएगा? ऊपर. क्लियर? तो इस तरह से आप इजी वे में लिख सकते हो. तो 5 बन जा 5, 5 + 2 7. तो इसमें देखो मैंने क्या बोला? मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक होल नंबर रहेगा और एक प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगा. तो ये 1 हो गया होल नंबर, कंप्लीट नंबर. नेक्स्ट वन प्रॉपर फ्रैक्शन यानी न्यूमरेटर लेस होना चाहिए, डिनोमिनेटर ग्रेटर होना चाहिए. तो ये आपको प्रॉपर फ्रैक्शन दिख रहा है. तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द मिक्स्ड फ्रैक्शन कैन बी फॉर्म्ड बाय द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड द मिक्स्ड फ्रैक्शन कंटेन्स वन होल नंबर एंड वन प्रॉपर फ्रैक्शन. So that becomes the definition of the mixed fraction. So you can write the what mixed fraction examples. So by converting the mixed fraction converting into mixed fraction that can be becomes the examples of mixed fraction. अगर आपको लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो 3 1 by 5 2 1 by 7 etc. हम ऐसे लिख सकते हैं. Next we will move on to the definition unit fraction. Then what is the unit fraction? So okay, now we'll go with the unit fraction. What is the unit fraction? So unit fraction means in fractions all the numerators are 1. All the numerators are 1. That types of fractions are called as unit fraction. For example, 1 by 2, 1 by 3 or 1 by 4, 1 by 7, 1 by 16 कुछ भी हो मगर न्यूमरेटर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए. So that type of fractions are called as unit fractions. What are the type of fractions are called as unit fractions? Clear? और okay, मैंने यहाँ पर definitions नहीं लिखे हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कैसे लिखे. ठीक है. Now equivalent fractions. So equivalent fractions यानी क्या? आपने 6th में किए होंगे. The same related to हम नंबर एक मल्टीप्लाई करके सेम न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. Then similar आपको एक और फ्रैक्शन आ सकता है. उसी टाइप के फ्रैक्शंस को हम क्या बोलेंगे? Equivalent fractions बोलेंगे. So up to now just we have learned some recap of your 6th standard. Just हमने वहाँ पर पढ़ा है. ठीक है. अभी आपको फ्रैक्शन समझ में आ गया. What is the like fractions? What is the unlike fractions and what is the proper fraction? What is the improper fraction? What is the mixed fraction? What is the unit fraction? And what is the equivalent fraction? Okay, have you learned? Now we will go for the addition of fractions. So this one is also you have done in your 6th standard. Okay, मगर यहाँ पर कुछ और तरीके से होगा. So you know about how to add the fractions. आपको पता है additions को हम fractions को हम कैसे add करते हैं. So how can you add the fractions? So first of all you have to observe the denominator. ठीक है. First of all what you have to do? You have to observe the denominator. If the denominators are same, so you can easily add the fractions. But when the denominators are not same, then what you have to do? You have to do the LCM. आपको क्या करना पड़ेगा? First of all, you have to find out the LCM and you have to make the denominators are same. If the denominators are same, then we can easily add the numerators. By adding the numerator, you can get the addition of fractions.
Clear? So this you have to remember. Whenever only you have to observe the denominator. If the denominators are same, no need to do the LCM. And if the denominators are not same, you have to do the LCM. And after doing the LCM, you have to equal the denominators. By equaling the denominators, you have to add the fractions. Clear? ओके आपने कॉन्सेप्ट भी मैम ने बताया होगा क्यों ऐसे ऐड करते हैं, जब डिनोमिनेटर इक्वल होते समय सेम नंबर क्यों ऊपर मल्टीप्लाई होगा वो आपको मैम ने बताया होगा 6th स्टैंडर्ड. सो वंस अगेन आई एम नॉट रिपीटिंग दैट. सो डायरेक्टली वी विल मूव ऑन टू द एक्सरसाइज 2.1 दैट इज एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस. ओके नाउ वी विल गो विद द एक्सरसाइज 2.1. व्हाट इज द एक्सरसाइज 2.1? फर्स्ट सम. सो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन बोथ वो एक ही जगह हो जाएगा. देन आफ्टर नेक्स्ट एक्सरसाइज मल्टीप्लिकेशन देन डिवीजन. सो फर्स्ट वी विल डू द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस. सो इन योर एक्सरसाइज 2.1 व्हाट इज द फर्स्ट सम दे हैव गिवन? सॉल्व. दैट मींस सॉल्व करके दिया है. व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? 2 - 3/5. सो नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस. सो व्हेनेवर यू आर डूइंग द सम्स कंपल्सरी यू हैव टू रिपीट द क्वेश्चन वंस. ओके सो -2 3/5. ओके इसको सॉल्व करना है. ये तो फ्रैक्शन है, ये तो होल नंबर है, तो इसको कैसे करेंगे? यानी कभी भी आपने ऑब्जर्व किया 3 मींस ये न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं मींस उसका मीनिंग क्या है? 1 होगा. क्लियर? तो यहाँ पर भी क्या होगा? 1 होगा. क्लियर? अभी 1 and 5 डिनोमिनेटर्स आर सेम? नो. देन यू हैव टू डू द एलसीएम. देन 1 and 5 का एलसीएम क्या होगा? 5 होगा. तो वहां पर इतना एलसीएम करने की जरूरत नहीं है. तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 1 and 5 का 5 एलसीएम हो जाएगा. नेक्स्ट सो 2 ये 1 से इसको करो. 1 में अभी 5 आना चाहिए. 1 में 5 कब आएगा? 1 5 जा 5. तो सीधा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ. ऑलरेडी ऑल इन 7th स्टैंडर्ड, नो नीड टू डू एज अ 6th स्टैंडर्ड. डायरेक्टली आपको करना है. ठीक है? तो 1 5 जा 5. नेक्स्ट फिर 5 ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा. देन 5 2 जा 10. क्लियर? नेक्स्ट 5 तो सेम है, डिनोमिनेटर इक्वल ही है, 5 ही तो है, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है. 5 नाउ 3. नाउ डिनोमिनेटर्स आर सेम तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं. 5 का 5 सेम नीचे आ जाएगा. 10 - 3. क्लियर? नेक्स्ट 10 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा? 7/5. सो दिस इज योर आंसर 7/5 फर्स्ट का. अब हम जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे. है सी. मैं आपको करवाने वाला हूँ सेकंड में थर्ड का. सो व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन मींस? सी 3/5 प्लस 2/7 आपको ये दिया है. क्लियर? नाउ 5 and 7 का एलसीएम करना है आपको. तो 3/5 प्लस 2/7. देखो कभी भी प्राइम नंबर्स के एलसीएम करने की जरूरत नहीं है. अगर दोनों के दोनों प्राइम नंबर्स हैं तो आप सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हो. मगर एक प्राइम एक इवन रहेगा, अदर देन प्राइम रहेगा तो आपको एलसीएम करना ही पड़ेगा. और दोनों के दोनों प्राइम नंबर नहीं है फिर भी आपको एलसीएम करना ही पड़ेगा. तो यहाँ पर दोनों के दोनों प्राइम है तो अगर हम एलसीएम करेंगे तो भी वही आंसर आने वाला है. 7 5 जा 35. तो अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे? 5 7 जा 35. तो यहाँ पर आएगा 35. क्लियर? सो 7 ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा. देन 7 3 जा 21. नेक्स्ट प्लस 7 5 जा 35. तो 5 ऊपर मल्टीप्लाई होगा. 5 2 जा 10. सो इससे जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई होगा. नाउ द डिनोमिनेटर्स आर सेम. डायरेक्टली वी कैन ऐड द न्यूमरेटर दैट इज 21 + 10 होल डिवाइडेड बाय 30. 21 + 10 31. 31 होल डिवाइडेड बाय 35. दिस इज योर आंसर. क्लियर? सो नेक्स्ट we will go for the next sum, that is if mixed fractions are given then how can you do it? So see once 2 2/3 plus 3 1/2 they are given this one. ठीक है? ये दिया है आपको. So इसको कैसे करेंगे? फिर पहले इसको ये मिक्स्ड में है तो इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है. यानी आपको इम्प्रॉपर यानी नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या है? आपको पता है क्या है? डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर. तो यहाँ पर ये क्या है? ये डिवाइजर है और ये बाजू में लिखे वो क्या है? वो कोएफिशिएंट है. जो ऊपर रहता है वो क्या है? रिमाइंडर है. तो सीधा हम कर सकते हैं. 3 2 जा 6. 6 + 2
8 डिवाइडेड बाई 3। हम इस तरह से डायरेक्टली लिख सकते हैं। क्लियर? 2 by 3 प्लस 3 1 by 2। सो 3 2 जा 6, 6 plus 2 8 divided by 3। नेक्स्ट 2 3 जा 6, 6 plus 1 2 3 जा 6, 6 plus 1 7 by 2। क्लियर? ये प्राइम है और ये इवन है, ठीक है। मगर 2 भी इवन प्राइम है तो सीधा अगर यहाँ पर है ना एलसीएम बन जाएगा आपका, नो नीड टू डू द एलसीएम। तो एलसीएम क्या बनेगा? 6 बनेगा, ठीक है। सो 3 2 जा 6 मींस ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई होगा, 8 2 जा 16। क्लियर? नेक्स्ट 2 3 जा 6, सो 7 3 जा 21। क्लियर? अभी डिनोमिनेटर्स आर सेम, देन वी कैन डायरेक्टली ऐड द न्यूमरेटर्स, दैट इज 16 plus 21 कितना होगा? 37। 37 डिवाइडेड बाय 16 6। तो यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो लास्ट का आंसर। तो यहाँ पर अगर हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में करेंगे तो कैसे आएगा एक बार देखते हैं, ठीक है। तो 31 डिवाइडेड बाय 35 नहीं होगा मिक्स्ड में, क्योंकि ये प्रॉपर है। तो हम किसको हम मिक्स्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं? ओनली इम्प्रॉपर को ही कर सकते हैं। इम्प्रॉपर यानी न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए और डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए। न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए एंड न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर छोटा है और न्यूमरेटर बड़ा है, तो ये मिक्स्ड में कन्वर्ट हो सकता है। तो हम करते हैं 37 से। सो 6 6 जा 36, आपका 1 रिमेनिंग हो गया, ठीक है। तो आपका क्या आएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन? 6 यहाँ पे, 6 यहाँ पे और 1 यहाँ पे। क्लियर? और ये तो नहीं हो सकता, ये तो हो सकता है ना 7 by 5। तो ये कैसे होगा? 5 1 जा 5 2 रिमेनिंग, ओके। 5 1 जा 5 5 plus 2 7, ठीक है। तो इस तरह से आपको सम्स करने हैं। तो अब हम जाते हैं सेकंड बिट पे। ओके, सो हाउ मेनी सम्स आई हैव डन ऑन द बोर्ड from the exercise 2.1 first bit only 3. Then what about the remaining sums? That is your homework. You have to do it your home in your notebook. Understand? Now we will move on to the second bit, that is first sum. Arrange the following in descending order. क्या बोला? Descending. What is the meaning of descending order and what is the meaning of ascending order? So leave about the ascending order. First of all we have to know about the descending order. What is the meaning of descending order? So descending means बड़े से छोटा। डिसेंडिंग मींस बड़े से छोटा। तो ये आपको याद रखना है, बिगर टू स्मॉलर। असेंडिंग मींस बिगर टू स्मॉलर। ओके, नाउ हाउ कैन वी अरेंज दिस फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर? सो दैट मींस by observing the denominators and numerators you have to arrange. So if you want to arrange in an order, the denominators must be equal. Okay, denominators सारे equal होने चाहिए। फिर इक्वल होने के बाद न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे, जो बड़ा रहेगा तो वही बड़ा फ्रैक्शन है और जो छोटा रहेगा तो वही छोटा फ्रैक्शन है। फॉर एग्जांपल मैं आपको साइड में करके दिखा रहा हूं, देन वी विल मूव ऑन टू द सम। सी फॉर एग्जांपल, सी दिस इज 5 इन डिनोमिनेटर्स आर इक्वल हियर, ओके। सो इन दिस which is a bigger one? 7 by 5 is a bigger one, okay। डिनोमिनेटर्स इक्वल रहने के बाद न्यूमरेटर को कंपेयर करना है, जिसके अंदर न्यूमरेटर बड़ा होगा वही सबसे बड़ा है, ओके। तो ये होगा फर्स्ट वन, ये हो गया सेकंड वन और ये हो गया लास्ट वन, ओके। सबसे बड़ा ये है, देन आफ्टर ये है, देन आफ्टर ये। अभी समझ में आया आपको? सो इन द सेम मैनर वी हैव टू डू द सम हियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इक्वलाइज द डिनोमिनेटर्स। व्हाट यू हैव टू डू? You have to equalize the denominator by doing the LCM. Therefore LCM of, यहाँ पर हम लिखेंगे LCM of 9, 3 and 21. Clear? So 9, 3 and 21. Whenever you have to start with the 2, मगर 2 से कुछ जाएगा नहीं, then we have to move to the 3. So 3 3s are 9, 3 1s are 3. Next 3 7s are 21. Clear? Next again 3 1s are 3, 7 same as it is. Next again 7 1s are 7. Then what is the LCM? That is 3 into 3 into 7. 3 3s are 9, 9 7s are 63. LCM क्या है आपका? 63 LCM आया। तो अभी हमें इसे क्या कन्वर्ट करना है? इक्वलाइज में कन्वर्ट करना है। तो इसका क्या आएगा? क्या मल्टीप्लाई करने से 63 आएगा? So 7 मल्टीप्लाई करने से आएगा, then 2 7s are 14, 7 9s are 63. Clear? Next 2 by 3.
2/3 को क्या मल्टीप्लाई करने से आएगा, देखो यहाँ पर है ना, एक 3 को लीव करके बाकी का मल्टीप्लाई करो। 7 3 जा 21, 21 3 जा 63, यानी हम यहाँ पर 21 लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 21, ठीक है, और ऊपर भी 21। सो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 21 2 जा 42 and 21 3 जा 63। क्लियर। नेक्स्ट 8/21 इंटू, यहाँ पर देखो 7 3 जा 21, 21 3 जा 63, ऑलरेडी यहाँ पर 21 है, तो यहाँ पर क्या आएगा 3, है ना, 21 3 जा 63 एंड 8 3 जा 3 8 जा 24। अभी आपको डिनोमिनेटर्स आर इक्वल नाउ, ओके। सो अरेंजिंग in descending order is equals to, arranging in descending order is equals to, descending order is equals to, फर्स्ट क्या आएगा, डिनोमिनेटर्स आर इक्वल, तो इक्वल करने के बाद इन तीनों में से किसका न्यूमरेटर बड़ा है, दिस वन, तो ये आएगा बड़ा। फर्स्ट 42 डिवाइडेड बाय 63, डिसेंडिंग मींस क्या, बड़े से छोटा, इसके लिए। फिर इसके बाद कौन सा आएगा, दिस वन 24/63, देन आफ्टर 14/63। मगर ये आए कहां से, ये आया कहां से, यहां से, यानी 2/3। नेक्स्ट ये आया कहां से, यहां से, दैट मींस 8/21। क्लियर। नेक्स्ट ये आया कहां से, यहां से, दैट मींस 2/9। So this is in this way you have to arrange the fractions in descending order. If they will say the ascending order means same process you have to follow, but at last you have to, what you have to do, from smaller to bigger you have to do. Okay, ascending means bigger, smaller to bigger, and descending means bigger to smaller. Now we will go for the third sum. Okay, now we will go with the fourth sum. Then what about the third sum? That is your homework. Just you have to check whether the by diagonal wise, by row wise and column wise you are getting a same answer or not. If the same answer means that is a magic box, if not means that is not a magic box. Clear? So third one is your homework. No need to write in the notebook also that one. Okay, now we will move with the fourth one. What they have given, fourth one, the rectangular sheet of paper is 12 1/2 centimeter long and 10 2/3 centimeter wide. Then what is its perimeter? Clear? So they have given length and they have given breadth. So what is the formula for the perimeter of the rectangle? That is 2 into L plus B. Okay, perimeter is equals to 2 into L plus B. In place of length and breadth you have to substitute these values and you have to find out the perimeter of the rectangle. So first what you will write, given that length of the rectangular sheet is equals to, length of the rectangular sheet is equals to how much, 12 1/2 centimeter. Then breadth of the rectangular sheet is equals to how much, 10 2/3 centimeter. So हमें क्या पता है, perimeter of the rectangle is equals to 2 into L plus B. So what is the L here? That is 12 1/2 centimeter. So हम यहाँ पर ही पहले इसको कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। 12 is 24, 24 plus 1 25/2 centimeter. Next 3/10 30, 30 plus 2 32 divided by 3. इस तरह से हम कर लेंगे, तो यहाँ पर ऐड करते समय इजी हो जाएगा। ओके, 10 3 से 30, 30 plus 32. सो अभी हम करेंगे नीचे यहाँ पे L means what, 25/2. सो मैं सेंटीमीटर नहीं लिख रहा हूँ, एट द फाइनल में मैं लिख दूंगा, ठीक है। नाउ 32/3. Here denominators are not same. Then you have to do the LCM. What you will get the LCM? That is 6 you will get. Therefore 6, 2 3 जा 6, 25 3 जा 75. मैंने आपको बोला था प्रीवियस सम में हमने किए थे। नेक्स्ट 3 2 जा 6, देन 3 2 जा मींस 32 2 जा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6. ये हो गया आपका ये। नेक्स्ट क्या होगा, देन आफ्टर that is equals to 2 into 75 plus 64 whole divided by 6. Clear? 75/6
75 प्लस 64 कितना होगा? 5 प्लस 4 9, 7 प्लस 6 कितना होगा? 13, यानी 139 होगा। नेक्स्ट होल डिवाइडेड बाय 6, यहाँ पर 2 है ऑलरेडी मल्टीप्लाई में, सो ये न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, देयरफॉर 139 होल डिवाइडेड बाय 3। इसको मिक्सर फ्रैक्शन में करना है तो हम यहाँ पर डिवाइड करना है 139 को 3 से, दैट इज 3 4 जा 12, 1 रिमेनिंग 9, 3 6 जा 18, 1 रिमेनिंग, तो आपका आंसर आएगा 118 होल डिवाइडेड बाय 3। ये आपका आंसर सेंटीमीटर। ये क्या है? आपका रेक्टेंगुलर शीट का पेरीमीटर। क्लियर? So now the fifth one they have given this diagram. Clear? So first they said find the perimeter of this triangle ABE. तो हमें तीन साइड को ऐड करना पड़ेगा। डायरेक्टली आप लिख दो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE, क्योंकि देयर इज नो फार्मूला एक्चुअली। ओके, इक्विलैटरल ट्रायंगल रहेगा तो सीधा वो कर देते हैं, मगर यहाँ पर तीनों की तीन साइड अलग है। दिस इज द स्केलियन ट्रायंगल। So in all the sides are different, that the type of triangles are called as scalene triangle. Therefore यहाँ पर सीधा आप क्या करोगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE is equals to 5/2 plus 2 3/4 plus 3 3/5। पहले इसको इम्प्रॉपर मैंने नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके ऐड देना, वो ऐड कर देना, वो आपका ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट वी विल गो विद द एरिया ऑफ द BCDE। इसका करना है, पेरीमीटर करना है, तो क्या करना है? 2 × l प्लस भी पता है, तो यहाँ पर B ये हो जाएगा और L ये हो जाएगा। प्रीवियस सम में मैंने समझा दिया है, तो उसी तरह से आप क्या करना है? 2 × l प्लस भी करके L के प्लेस में ये और B के प्लेस में ये रख के आपको सॉल्व कर देना। दैट्स व्हाई फिफ्थ सम इज योर होमवर्क। ओके, नाउ वी विल गो विद द सिक्स्थ सम। ओके, नाउ वी विल गो विद द सिक्स्थ सम। नाउ वी विल गो विद द क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज Salil wants to put a picture in a frame. Okay, picture एक है, वो उसको फ्रेम में बिठाना चाहता है। ठीक है, so the picture is 7 centimeter wide. That is, what is the breadth of the picture? That is 7 3/5 centimeter. Now to fit in the frame, the picture cannot be more than 7 3/10 centimeter. Okay, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हम उसको फ्रेम में फिट करना है तो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो how much the picture should be cut? यानी उसको पिक्चर को हमें कितना रिड्यूस करना चाहिए, साइड पे थोड़ा कम करना चाहिए, तब जाके उसमें फिट हो सकता है। तो सर कैसे है? ये तो 7 3/5 है, ये 7 3/10 है, तो आपको ये याद रखना है। ऑलरेडी आपने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, तो मैं इतना लॉन्ग नहीं जा रहा हूँ, आपको शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ कि हाउ यू कैन रिमेंबर। सो इफ द स्मॉलर न्यूमरेटर means that is the bigger fraction. Okay, if the greater denominator, that should be a smaller fraction. Understand? समझ में आ रहा है आपको? If अगर smaller denominator है, smaller denominator means that is a bigger fraction, and if the greater denominator, that means that is a smaller fraction. तो इसके लिए ये smaller हो गया और ये bigger हो गया, तो अभी क्या पता चला? अपनी फोटो बड़ी है, उसमें बैठ नहीं पा रही है, तो इसके लिए पूछा how much it should be trimmed. That means the four corners it should be trimmed, that should be fit in a frame. तो हमें क्या करना है? तो इसको इसमें से क्या करना है? इसको इसमें से निकालना है। जैसे कि मेरा 5 सेंटीमीटर का फोटो है, ठीक है, दैट मीन्स ये है और साइज इतना है 7 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो अभी मुझे कितना काटना पड़ेगा? सॉरी 7 नहीं, यहाँ पर ले लो 3 सेंटीमीटर ले लो। तो अभी 5 में से मुझे कितना काटना पड़ेगा तब जाके 3 बनेगा? दैट मीन्स 2, दैट मीन्स 5 माइनस 3, तो आपका आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। क्लियर? समझ में आएगा? तो वैसे ही यहाँ पर फ्रैक्शन दिया है, मैंने नॉर्मल नंबर्स लेके मैंने आपको किया है। तो क्या करना है यहाँ पे? तो ये हो गया बिगर, ये हो गया स्मॉलर, तो आपको बिगर में से क्या करना है? स्मॉलर को निकाल देना है, तब जाके आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? सो अभी हम आंसर लिखते हैं। गिवन दैट the picture which is in the length of the picture is equals the wide of the picture that is equals to how much? 7 3/5 centimeter. Clear? Next, so
To fit in the frame, the picture cannot be more than, given the picture cannot be more than is equals to, picture cannot be more than to fit in frame, that is equals to how much, 7/3/10 centimeter. Clear? तो अभी हमें माइनस करना है क्या, how much the picture should be trimmed. So the picture should be trimmed is equals to, माइनस करना है क्या, the picture should be trimmed is equals to बिगर कौन सा है, ये वाला, that means 7/3/5 सेंटीमीटर माइनस 7/3/10 सेंटीमीटर. क्लियर? तो चलो देखो अभी करते हैं इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो. 7/5 = 35, 35 + 3 39, 38 सॉरी 7/5 = 35, 35 + 3 38/5 सेंटीमीटर. नेक्स्ट 7/10 = 70, 70 + 3 73/10 centimeter. Clear? Now here denominators are same, denominators are not same. Then what we have to do? We have to do the LCM. Then what is the LCM of 5 and 10? 5 and 10 का अगर आप LCM करेंगे तो आपका क्या आएगा, 10 ही आएगा. तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ यहाँ पे. So 5 2s are 10. क्या आएगा? 5 2s are 10. Then 2 भी ऊपर मल्टीप्लाई होगा ना. Then 38 2s are how much? 2 2 8s are 16. 1 remaining. 2 3s are 6. 6 + 1 7. 76/10. आपको दिखने लगा, मैं थोड़ा बड़ा लिख दूंगा. 76/10 ये ऑलरेडी है तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है. सो माइनस 73/10 सेंटीमीटर. सो नाउ डिनोमिनेटर्स आर सेम, देन डायरेक्टली वी कैन subtract the numerator, that is 76 - 73, that is equals to 3/10 सेंटीमीटर. तो हमें फोटो को कितना और काटना चाहिए, इस 7/3/5 में से कितना काटना चाहिए, इतना काटना चाहिए, तब जाके आपका फोटो उस फ्रेम में फिट हो सकता है. क्लियर? ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. सी Ritu ate 3/5 part of an apple. So how much part of an apple eaten by Ritu? That is 3/5. Clear? So and the remaining part which is left by Ritu was eaten by her brother Somu. Clear? Then how much part of the apple did Somu eat? So वो remaining part कितना है जिसने सोमू का आया है. So who had the larger share? दोनों में से किसने ज्यादा खाया है. Okay, and how much? वो कितना है. That means here Ritu है, उसने एप्पल खाई है. उस एप्पल में से उन्होंने 5 पार्ट्स कर दिए. 5 पार्ट्स में से उसने 3 पार्ट्स ले लिए और बाकी के रिमेनिंग पार्ट्स किसने लिया, सोमू ने लिया. ठीक है, उसके ब्रदर. तो किसका शेयर ज्यादा है. ओके. और एंड हाउ मच, कितना ये आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है. तो अब नॉर्मली तो मैंने बता दिया कि 5 पार्ट्स कर दिए, तो दैट मींस 3 पार्ट्स इसने लिए तो 2 पार्ट्स इसने लिए होंगे, मगर यहाँ पर वर्कआउट करना पड़ेगा ना. सो लेट मी सी. सो पार्ट ऑफ एन एप्पल eaten by or ate by Ritu is equals to how much, 3/5. Clear? Next, part of an apple eaten by Somu, उसका ब्रदर. सो एप्पल पूरा एक ही बोला है, 1 एप्पल. तो 1 ये नंबर 1 में से अगर हम 3/5 को निकाल देंगे तो सोमू का आ जाएगा, है ना. तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में तो कुछ है नहीं, तो 1. तो 1 और 5 का डिनोमिनेटर क्या होगा, 5 ही होगा. देयरफॉर 1 × 5 क्या होगा, 5. तो ऊपर भी 5 मल्टीप्लाई होगा, 5. नेक्स्ट 3/5 है ना, दैट इज इक्वल्स टू 5 - 3/5, दैट इज इक्वल्स टू 2/5. देखो इतना वर्कआउट किया मैंने. पहले तो नॉर्मली बता दिया कि 5 पार्ट्स किए हैं. 5 पार्ट्स में से रितु ने 3 लिए हैं, तो 2 पार्ट्स किसने लिए होंगे, सोमू ने लिया होगा. मगर देखो यहाँ पर हमें सम इस तरह से करके दिखाना होगा. नाउ अभी बताओ how much part of the apple did Somu eat? So the part of an apple eaten by Somu is equals to आ गया. Then who had the larger share? Ritu है क्या,
सोमू है, रितु, तो यहाँ पर लिखना है रितु had a larger share. Ritu had the larger share. That is 3/5. Clear? अभी हम जाते हैं लास्ट सम, दैट इज योर एक्सरसाइज 2.1, आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो वो हम जाते हैं, ठीक है। Now the last sum exercise 2.1, 8th one, what they are given. See, Michael finished coloring the picture in 7 divided by 12 hours. Vaibhav finished coloring the same picture that is 3/4 hours. Who worked longer? By what fraction was it longer? तो मैंने समझा दिया था आपको, क्या देखो यहाँ पर 7/12 है एंड और क्या है 3/4 है। जो फ्रैक्शन में जिसका डिनोमिनेटर छोटा रहेगा वही बड़ा फ्रैक्शन है, क्लियर। एंड जिस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा, ओके, डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा वही क्या है, छोटा फ्रैक्शन है, क्लियर। डिनोमिनेटर ऑब्जर्व करो, डिनोमिनेटर स्मॉलर मींस दैट इज अ बिगर फ्रैक्शन, इफ द डिनोमिनेटर इज बिगर मींस दैट इज अ स्मॉलर फ्रैक्शन, क्लियर। ये तो पता चल गया अभी। तो कौन टाइम ज्यादा लेगा, तो ये बिगर है, मोर, ये बिगर है, मैं इस तरह से आपको बता रहा हूं, बिगर, ये बिगर है और ये स्मॉलर है। अभी कौन ज्यादा टाइम ले रहा है फिनिश करने में, दैट मींस Vaibhav इज टेकिंग लॉन्गर टाइम टू फिनिश द पिक्चर। ये हो गया आपको, मगर इतना थोड़ी ना करना है यहाँ पे, आपको और क्या करना है, बाय व्हाट फ्रैक्शन, कितना फ्रैक्शन टाइम ज्यादा ले रहा है उससे, वो भी आपको यहाँ पर करना है। तो इसके लिए हमें सम इस तरह से नहीं बोल सकते, वर्कआउट करना पड़ेगा यहाँ पे पूरा। तो हाउ कैन वी डू, लेट मी सी नाउ। सो फर्स्ट given that what they have given, Michael finished the picture, Michael finished coloring a picture is equals to 7 divided by 12 hours. Next, Vaibhav finished coloring a picture is equals to 3/4 hours, क्लियर। ये है, ये आपको दिया है। नेक्स्ट, who worked longer, तो हम बाद में लिखेंगे करने के बाद, ठीक है। सो यहाँ पर हम पहले करेंगे ना, तो इसमें से बिगर कौन सा है, ये है, तो इसमें से इसको ये निकाल देना है। सो 12 और 4 का एलसीएम करना पड़ेगा हमें, ठीक है। सो यहाँ पर पहले लिख देंगे Vaibhav worked longer to finish the picture, to coloring the picture, clear। Then what fraction was it longer, so the fraction which is longer, that is equals to the fraction which is longer, by what fraction was it longer, so the fraction by it longer is equals to the fraction by which it is longer, that is equals to फ्रैक्शन हुआ बड़ा, कितने फ्रैक्शन से वो बड़ा होने लगा, तो द फ्रैक्शन बाय व्हिच इट इज लॉन्गर, दैट इज इक्वल्स टू, तो क्या आएगा आपका 3/4 माइनस 7/12, क्योंकि ये बड़ा है इसके लिए, ये छोटा है, क्लियर। तो अभी 4 and 12 का एलसीएम करो, तो 4 and 12 का एलसीएम क्या आएगा, 2 2 4, 2 6 12, 2 1 2, 2 3 6, 3 1 3 1, तो 2 into 3, that is equals to 12, क्लियर। ये आ गया। तो ये स्टेप्स तो आपको पता है, तो मैं ऊपर का मिटा दे रहा हूँ, क्लियर। तो वहां पर प्लेस नहीं है, तो मैं ऊपर का क्वेश्चन मिटा दे रहा हूँ, क्लियर। आपका एलसीएम आया 12, सो देयरफॉर 3/4, यानी 4 में 12 कब आता है, 4 3 से 12, तो ऊपर 3 भी मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 3 3 9, क्लियर। नेक्स्ट 7/12 सेम रहेगा, क्योंकि
उसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, डिनोमिनेटर ऑलरेडी 12 है। नाउ डिनोमिनेटर्स आर सेम, वी कैन डायरेक्टली subtract the numerators, that is 9 minus 7, 9 minus 7, that is equals to 2 by 12, 2 1s are 2 6 are, that is equals to 1 by 6। तो उससे इसने वैभव ने कितना टाइम ज्यादा लिया, मींस 1 by 6 hours, इतना टाइम उसने ज्यादा लिया है। So now your exercise 2.1 is completed. Okay, you have to search the definition and you have to write in your field notes. Thereafter you have to complete your exercise 2.1 in your notebook. Okay, so regarding this solution PDF आपको already आ जाएगा। Thereafter we will move for the exercise 2.2 in next video class. Okay, thank you.